section is paid salary to Rima by net banking. Yes, Prishita. Yes, sir. Paid salary to Rima by net banking, rupees 54,000. Yes, now 51,000. Now tell me what should be the journal entry for this? So we will debit salaries account with Yes, 51,000 and we'll credit bank account. 54. Yes, you were right. It's for 54,000. Salaries account debit 54,000 and to बैंक अकाउंट 54,000. डेट कॉलम में हमने डेट लिख दी 2020 अप्रैल 29. ठीक है, एक पेज पे आप ट्रांजैक्शन लिखते जाओ, नेक्स्ट पेज पे आपने जिस पे जर्नल का फॉर्मेट बना रखा है उसमें एंट्रीज करते जाओ साथ साथ. नरेशन हमने लिख दी पेड सैलरी. एज आई टोल्ड यू, in case of an expense, even if the name is given, we have to ignore it. Now some people may think that we can debit Rima's account because Rima is a receiver, but we cannot. In case of an expense, yes Khushi, you want to say something? So I wanted to ask that when we write the narration, do we have to write the word being before writing the whole sentence? Have I written it? The word being, because in some books it's written. Have I written it? No, sir. No. That means it is not necessary. अगर necessary होता तो मैंने लिखा होता ना. It is not necessary. Okay, It's your wish. sir. You may write, you may not write. It's your wish. Not necessary. Okay. So some people may think that we can debit Rima's account because Rima is receiver. Yes, logically it seems right because Rima is a personal account and Rima is receiver. So Rima debit to bank account. But I told you in case of expenses and incomes, even if the name is given and the amount has been paid or received, we ignore the name. Okay, so Rima, if we pass the journal entry Rima debit to bank account in this case, that will be wrong. Clear? Yes, sir. Read the next transaction. Salaries due, 50,000. So what So should be salaries account debit with Very 50,000 and two salaries outstanding account. Very good. Salaries due, अब paid नहीं है, due है मतलब outstanding है. तो salaries accrual concept के हिसाब से salaries account debit तो हो जाएगा because it has become due. So in date column we write 30th, then salaries account debit 50,000. Credit किसको करेंगे? To salaries outstanding account because it has not been paid yet, so it is a liability. Clear? Yes, sir. Narration में हमने लिख दिया salary due. Read the next transaction. May 2, sold furniture of book value rupees 5,000 for 4,500. Sold furniture of book value 5,000 for 4,500. क्या मतलब हुआ इसका? सर 500 रुपीज का लॉस हो गया. Book value का क्या मतलब है? Sir, the original cost at which we bought. नहीं, बुक वैल्यू का मतलब है हमारी बैलेंस शीट में जो उसकी वैल्यू है, हमारे अकाउंट्स में जो उसकी वैल्यू है. हो सकता है ये हमने 6,000 का परचेज किया था, ठीक है, उस पे 1,000 हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो अब हमारी अकाउंटिंग बुक्स में इसकी वैल्यू रह गई है 5,000. सो बुक वैल्यू मींस द वैल्यू इन आवर अकाउंटिंग बुक्स. क्लियर? Yes, sir. तो 5,000 की जिसकी वैल्यू है हमारी बुक्स के हिसाब से, वो बिका है फर्नीचर 4,500 में. एंड यस यू आर राइट, तो 500 रुपीज का हमें लॉस हो गया. ठीक है, लॉस को क्या करते हैं? Sir, डेबिट या क्रेडिट? नॉमिनल अकाउंट्स के क्या रूल होते हैं?
सर लॉस को हम डेबिट करेंगे. डेबिट करेंगे. चिंतन wants to say something. क्या हुआ? चिंतन ने हैंड रेज किया था. यस चिंतन बोलो. नो सर, वैसा आप पूछ रहे थे वो बता रहा था, ओके. उसके लिए करा था. So डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो लॉस को हम डेबिट करेंगे 500 रुपीज को. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ? Bank account debit with 4,500 Is it and written? loss. Is it written that we have received the amount in bank? Sir, but it's not written that it's in cash. Yes, you can. You preferably we take it in cash. If it is not written and the amount is, let us say, less than 10,000 rupees, then preferably we take it for cash. Or even if you write bank, it will not be wrong because it is not specified over here. So bank account debit 4,500. Okay, as you said. Then और क्या डेबिट करना है? Loss. Sir, loss account. तो लॉस का नाम लेकिन हमें पूरा लिखना पड़ेगा, किस चीज का लॉस हुआ है, क्योंकि अभी जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है वी नो व्हाट लॉस इज देयर, बट इन अ फ्यू डेज बाय द एंड ऑफ द ईयर वी मे फॉरगेट, वी मे इंकर सेवरल लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, और हर एक में सिर्फ लॉस अकाउंट लिखते जाएंगे तो ईयर एंड तक हम भूल जाएंगे कौन सा लॉस किस वजह से था. सो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी शुड राइट द डिटेल ऑफ द लॉस. तो हम पूरा लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500. ठीक है, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे? Furniture account. वेरी with गुड. 5,000. टू फर्नीचर अकाउंट 5,000. नरेशन में फर्नीचर सोल्ड, डेट में May 2nd. हरसिमर wants to say something. Yes, हरसिमर. सर इसमें ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ कि ये इसका क्या चीज का काम है, तो अगर ये फर्नीचर का ही हुआ तो इनके लिए गुड्स नहीं हो सकता फर्नीचर? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो, इसमें स्पेसिफाइड होता कि फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, तो फिर ये गुड्स हो सकता था. लेकिन जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो गुड्स वर्ड जब भी लिखा होगा हम गुड्स को लेंगे सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न. गुड्स के अलावा फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी लिखा होगा तो हम उसे एसेट मानेंगे अलग से. ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा होता दैट फर्नीचर शोरूम है उसका या फर्नीचर का बिजनेस है, तब हम इसे सेल्स ले सकते थे. क्लियर? तो सर जो लॉस होता है फ्रॉम नॉन रेवेन्यू ऑपरेशंस, तो उसमें नाम मतलब लिखना इम्पोर्टेंट होता है, लॉस बाय फर्नीचर अकाउंट? यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो क्या होगा, साल में सपोज आपने 3-4 बार की कोई मशीन बेची उस पे लॉस हो गया, फिर आपने कोई बिल्डिंग बेची उस पे लॉस हो गया, ईयर एंड में आपको पता ही नहीं चलेगा किस वजह से कितना लॉस था. आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिर्फ दिखेगा लॉस 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 3 बार. कौन सा लॉस किस वजह से है, द यूजर्स विल नॉट बी एबल टू नो. तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, क्लियर होना चाहिए, सारी डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, सो दैट whenever someone sees our profit and loss account, that person is able to know. जब उसमें लिखा होगा to loss on sale of furniture account, to loss on sale of machinery account, to loss by fire account, तो क्लियरली पता चलेगा कितना लॉस किस वजह से हुआ है. गेटिंग इट? यस सर. एनी अदर डाउट एनीवन अप टू नाउ? Okay, read the next transaction. Prashita wants to 5th May sold furniture. wait. Yes, Prashita. सर हमने लॉस को डेबिट क्यों किया है, एक बार समझा दो. नॉमिनल अकाउंट के रूल्स बताओ क्या होते हैं? Debit all expenses and losses and credit all incomes and Yes. gains. So you just said it, debit all expenses and losses.
क्योंकि ये लॉस है इसलिए डेबिट किया है। ठीक है, ओके, पढ़ो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। May 5 sold furniture of book value rupees 5,000 for 5,600. यस, क्या मतलब हुआ अब इसका? सर यहाँ पे हमें 600 का गेन हुआ है। हमें 600 का गेन हो गया है, यस, क्योंकि 5000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने 5600 में बेच दिया है। गेन को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट। वेरी गुड, तो अब एंट्री बताओ इसकी क्या बनेगी? सर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट विद 5,600, टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 and to gain on sale of furniture account 600. वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट 5600, ठीक है, इतना अमाउंट हमें मिल गया। देन टू फर्नीचर अकाउंट 5000। एसेट को हमेशा डेबिट या क्रेडिट उस वैल्यू से करेंगे जो उसकी बुक वैल्यू है। किसी भी एसेट को हम सेल कर रहे हैं तो हमेशा वो क्रेडिट होगा बुक वैल्यू से, ठीक है, क्योंकि 5000 का उसमें बैलेंस है तो 5000 से ज्यादा हम उसे क्रेडिट नहीं कर सकते। गेटिंग इट? एंड Yes, गेन sir. को हम कर देंगे क्रेडिट, लेकिन गेन भी पूरा लिखेंगे, टू गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 600। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, फर्नीचर सोल्ड। क्लियर? Yes, sir. रिटर्न Yes, sir. पढ़ो फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 7th, amount received from Ritesh 2,000, amount irrecoverable from Ritesh to be written off 3,000. व्हाट डज दिस मीन? So we have received the amount from Ritesh and 3,000 is the bad debt. मतलब हमें रितेश से टोटल कितना अमाउंट मिलना था? 5,000. वेरी गुड, 5000, जिसमें से 2000 रुपीज वी हैव रिसीव्ड एंड 3000 इज इररिकवरेबल। इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर मींस बैड डेट्स, ठीक है, वेरी गुड। एंट्री बताओ। So cash account debit with 2,000, यस, कैश अकाउंट Bad डेबिट debt. 2000, bad debts account debit with 3,000, वेरी गुड। बैड डेट्स इज अ लॉस, and डेबिट ऑल लॉसेस, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3000। क्रेडिट किसको करेंगे? Ritesh with Right. 5,000. टू रितेश 5000, ठीक है। उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड एंड रिमेनिंग बैड डेट्स। क्लियर? Yes, sir. सर नरेशन में कुछ अगर चेंज हो तो वो चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है, एज लॉन्ग एज इट इज मेकिंग प्रॉपर सेंस, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो। 10, unexpectedly recovered from Ritesh 3,000. मीनिंग? So we have recovered the bad debts. So cash account will be debited वेरी and गुड, two bad debts recovered account. वेरी गुड। जो हमारी बैड डेट्स हुई थी वो रिकवर हो गई हैं, सो कैश अकाउंट डेबिट 3000, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 3000। बैड डेट्स रिकवर्ड को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अ गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बैड डेट्स रिकवर्ड, नरेशन में लिख दिया। क्लियर? Yes, sir. रिटर्न? Yes, sir. ओके, रीड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 12, interest due but not received 4,800. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये एक्सपेंस है या इनकम है? पहले तो ये बताओ। Sir, income. इनकम है जो मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, ड्यू हो गई है। ड्यू हो गई है तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें रिकॉर्ड तो करनी होगी, ठीक है। इनकम को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? Sir, credit. क्रेडिट।
तो किसको क्रेडिट करेंगे यहाँ पर हम? सर इंटरेस्ट अकाउंट। वेरी गुड, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर मिल गया होता तो कैश या बैंक डेबिट हो जाता, नहीं मिला है तो अब किसको डेबिट करेंगे? सर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। वेरी गुड, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, ये एक्रूड इनकम हो गई। सो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4800 टू इंटरेस्ट अकाउंट 4800, accrued interest is the narration. Clear? Yes sir। पढ़ो next transaction। 15 outstanding salaries paid। Outstanding salaries paid, लेकिन इसके आगे अमाउंट तो कुछ लिखा नहीं है, क्या चक्कर है? सर वो सेकंड सीरियल नंबर पर सैलरीज ड्यू वो वाली। यस वेरी गुड, ये serial हाँ ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो कई बार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो मिसिंग है, अमाउंट ही नहीं दिया हुआ, मिसप्रिंट है क्वेश्चन पेपर में। मिसप्रिंट नहीं है, आप ध्यान दोगे तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग आपको उसी क्वेश्चन में ऊपर दे रखी हैं 50,000। इसका मतलब वो जो अमाउंट था आउटस्टैंडिंग वो अब पे हो गया है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? Sir, salaries outstanding account debit with 50,000 यस and to cash account. एक्सीलेंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट क्यों नहीं? सैलरी पे कर रहे हैं ना, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं करते हम? सर क्योंकि वो हमने पहले ही कर दिया था। वेरी गुड, क्योंकि वो हमने तभी कर दिया था जब वो ड्यू हुई थी। अब करेंगे तो डबल हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। सेकेंडली, जिस डेट पे अब हम एंट्री कर रहे हैं इस डेट पे ड्यू नहीं हुई, तो इस डेट पे हम सैलरी अकाउंट नहीं ला सकते। थर्ड रीजन, आउटस्टैंडिंग सैलरी की हमारी लायबिलिटी अब खत्म हो रही है जब हम ये पेमेंट कर रहे हैं, तो उस लायबिलिटी को क्लोज करना जरूरी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग तब हमने क्रेडिट किया था, तो उसे क्लोज करने के लिए अब डेबिट कर देंगे। वैसे भी रूल्स के हिसाब से whenever liability decreases we debit it, तो लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000 पेमेंट हो गई। ठीक है, कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं हम अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो। सैलरी आउटस्टैंडिंग पेड। क्लियर? Yes sir। Read the next transaction। 17 में accrued interest received। Again amount is not given, means So 4,800। yes, अभी ये जो 12th हमने में। पहले एंट्री की थी 4,800 वाली, इसका मतलब वो वाला accrued इंटरेस्ट अब मिल गया है। तो क्या एंट्री होगी? So we will debit cash account with 4,800 वेरी गुड, and we will credit accrued interest account। एब्सोल्युटली राइट। कैश अकाउंट डेबिट 4,800 क्योंकि अमाउंट मिल गया। ठीक है, और एक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा एसेट था उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि वो हमने पहले जब वो ड्यू हो गई थी तब हमने कर दिया था। वेरी गुड, सेम लॉजिक जैसा हमने पिछली एंट्री में डिस्कस किया। इंटरेस्ट अकाउंट पहले ही 12th की डेट में क्रेडिट हो चुका है, अगर अब फिर से क्रेडिट कर देंगे तो डबल क्रेडिट हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। सेकेंड रीजन, इंटरेस्ट ड्यू 17th को नहीं है, 12th को ड्यू हुआ था तब क्रेडिट हो गया था, 17th को हम उसे क्रेडिट नहीं कर सकते। थर्ड रीजन, एक्रूड इंटरेस्ट जो एक हमारा एसेट था उसका अमाउंट मिल जाने से वो एसेट अब क्लोज करना है। ठीक है, तो इसलिए उसे अब क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दिया सेम अमाउंट से, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और नरेशन में हम लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर? यस सर। पढ़ो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 20th में So we were discussing 10% depreciation on machinery. The cost of machinery is rupees 25,000. So 10% of that cost is 2,500. And depreciation is an expense. So depreciation account debit
to machinery account 2500. Depreciation charged on machinery. Clear? Yes, sir. Next transaction पढ़ो. 22nd में goods cost rupees 12,000 and selling price rupees 15,000 used in making furniture. क्या मतलब हुआ इसका? 12,000 Sir, goods और 15,000 सर जो जिनका selling goods थे वो गुड्स फर्नीचर बनाने में यूज हो गए. ठीक है, सपोज वुड का अगर बिजनेस है तो उस वुड को हमने यूज कर लिया ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाने में. कॉस्ट प्राइस था 12,000, सेलिंग प्राइस था 15,000. क्या एंट्री होनी चाहिए? So furniture is increasing, so we will debit furniture account. Very good. Furniture is increasing, so debit furniture account. Yes, Harsimar, you want to say something? सर मैं कह रही थी कि इसमें ड्राइंग्स नहीं होगा कि क्योंकि उसने जो गुड्स परचेज किए थे वो उसने फर्नीचर के लिए यूज कर लिए. लेकिन वो फर्नीचर तो सर ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो फर्नीचर घर के लिए बना रहा है. अगर ऐसा लिखा होता तो ड्राइंग्स हो जाती. अगर सिंपली लिखा है फर्नीचर बनाने में यूज कर लिए तो हम मान के चलेंगे फर्नीचर इज बीइंग मेड फॉर ऑफिस यूज. ओके सर, तो सर इसमें परचेज कम होगा फिर क्रेडिट. वेरी गुड. यस, तो गुड्स हमारे जो परचेज किए थे हमने सेल करने के लिए, अब वो सेल में तो नहीं जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए परचेज का एक्सपेंस हम कम कर देंगे क्योंकि वो गुड्स रेवेन्यू से मैच नहीं होंगे, वो वाला परचेज एक्सपेंस. ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? So furniture account debit with 12,000 and two purchases account. वेरी गुड. 22nd लिखा डेट कॉलम में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000. ठीक है, क्यों 12,000 ये भी बताता हूं. टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमारे परचेज किए हुए गुड्स कम हो गए. जब भी हमारे परचेज किए हुए गुड्स कम हो जाते हैं विदाउट बीइंग सोल्ड, विदाउट बीइंग रिटर्न टू द सप्लायर, वी क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमारा परचेज एक्सपेंस कम हो गया है. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब अमाउंट 12,000 क्यों? क्योंकि परचेज को मैंने आपको बताया था जब भी डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो हम 12 उससे कॉस्ट प्राइस पे करते हैं. जस्ट अ सेकंड. हाँ, सो आई वाज टेलिंग यू दैट परचेज अकाउंट जब भी डेबिट या क्रेडिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है. क्लियर? Yes, sir. तो एंट्री क्लियर है. अब ये नरेशन हमने लिख दी, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर. एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. ओके, रीड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. 25th May received commission, half of which is in advance, rupees 16,000. वेरी गुड. रिसीव्ड कमीशन, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, मतलब कितना अमाउंट एडवांस में है? So 8,000. वेरी गुड. इसका मतलब 8,000 कमीशन ड्यू हो चुका है जो मिला है और 8,000 एडवांस में मिल गया है. अब बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? So cash account or bank account debit with 16,000. दोनों 16, हाँ दोनों में से कोई एक 16,000. यस, कैश अकाउंट डेबिट 16,000 To commission टू कमीशन रिसीव्ड received अकाउंट account. 8,000. ठीक है, रिसीव्ड लिखना इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कमीशन एक्सपेंस भी हो सकता है, उससे कहीं कंफ्यूजन ना हो. सिंपली कमीशन लिखा होता है तो वो एक्सपेंस लगता है. ठीक है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 8,000 एंड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट ऑल्सो 8,000. ठीक है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी हो गई. वी हैव रिसीव्ड एन इनकम इन एडवांस, उसकी सर्विसेज अभी हमने प्रोवाइड करनी है. क्लियर? Yes, sir. नरेशन लिख दी हमने, कमीशन रिसीव्ड. एनी डाउट अप टू हियर? Sir, इस वाले नरेशन में नहीं लिखना कि part of which is in advance. हाँ, दैट यू कैन राइट, नॉट नेसेसरी बट यू कैन राइट. इट्स बेटर इफ यू राइट और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो वी स्टॉप ओवर हियर टुडे.
Any doubt, anyone? No? Okay, thank you. Thank you, sir.